Okay. So I'm reading most IELTS task 2 essays follow the same basic 4 paragraph structure. The first is introduction. The second is supporting paragraph 1. Third is supporting paragraph 2. And fourth is conclusion. These paragraphs take up most of your essay and are therefore where most marks are won and lost. Write 2 good supporting paragraphs and you are most of the way to getting a good final mark. This lecture will look at what the examiners want, look at good and bad examples, show you how to write topic sentences, and show you how to develop your topic sentence with explanations and examples. आज का जो डिस्कशन है is not about how to write an essay, is not about how to write or what are the different types of essays. ये जो सेशन है वो उसके लिए भी नहीं है कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है या तो फिर आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है. ये सेशन जो है इज ओनली डेडिकेटेड टू हाउ टू राइट ए प्रॉपर पैराग्राफ इन योर एसे. बिकॉज देखिए पैराग्राफ जो होता है इज गोइंग टू बी ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 90 वर्ड्स. सो अगर 2 पैराग्राफ की बात करें तो इट विल कम आउट टू बी 180 और 190 वर्ड्स. सो दिस इज वेयर द बैटल इज वोन और लॉस्ट. क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दिया, कंक्लूजन भी अच्छा लिख दिया, बट पैराग्राफ जिसका ज़्यादा बल्क जो होता है वो तकरीबन 70 to 80% है. If you don't write a proper paragraph, more often than not, you are going to get a very poor score. So आज का जो सेशन है is dedicated to how to write a proper paragraph. Clear? Okay. Okay. Now, first of all, let us understand this. What do examiners want? Do you know? Have you seen this on the left hand side? Can you see this a small chart? आपको दिख रहा है band 5, band 6, band 7 and band 8. Can you tell me what is this? कोई मुझे समझा पाएगा ये है क्या? I want somebody to explain me what is this, please. What is this? ये है क्या? On your left hand side, what is this? Yes, students, I am asking you. ये band 5, band 6, band 7, band 8 ये है क्या? Can you explain me, students? Please write in the chat box what according to you this must be. Please. Yes, students, can you write? What is this? Yes. Okay, fine. Now, देखिए ये क्या है मैं आपको समझाऊं. First and the foremost thing is you must be knowing that you have got, for example, आपको पता होगा कि राइटिंग टास्क, लिसनिंग और रीडिंग में बैंड पैरामीटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गेट 7 बैंड्स और 8 बैंड्स, देन यू नीड टू गेट अ पर्टिकुलर स्कोर. फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 बैंड्स लाने हैं तो आपको 30 स्कोर चाहिए. इफ यू वांट टू गेट 8 बैंड्स यू नीड टू गेट 35. if you want to get 8.5 bands, then you need to get 37. So this was that type of table is there in reading and listening, but this type of table is only there in the writing part. ये सिर्फ writing में होता है. And in writing you have got this band parameters wherein you have got band 5, band 6, band 7 and band 8, जिसमें ये describe किया जाता है कि what is the difference between bands 5 and band 8. And if you look at band 8 properly, इसके पैरामीटर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. Let me read. If we look at the public band descriptors on the difference between band 5 and band 8 answers, you can see that the examiner wants you to respond to the question with relevant, extended and supported ideas. देखिए अगर आप ये पैरामीटर को आप पढ़ेंगे, this is the parameter of band 8, उसमें सीधा लिखा है कि you need to, सिर्फ आपको आइडिया बयां नहीं करना है. You don't need to simply give the idea, but you need to explain that आइडिया को relevant, extended और supported ideas से उसको exemplify करना पड़ेगा, or else no matter how rich your idea is, you are not going to get a score. तो band 5 और band 8 में फर्क ही ये है कि band 5 में richness का कोई फर्क नहीं है. You may have a very good idea in band 5, but if you are not explaining that properly, you will end up in still getting 5 bands. उसी हिसाब से अगर band 8 में आपका जो आइडिया है, it has to be properly explained. जैसे कि let me explain you the good and bad examples. अगर किसी ने पैराग्राफ डिस्क्राइब किया है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल कौन सा अच्छा है. Look at the following example and think about what the examiner wants. जैसे कि फर्ज कीजिए कि क्वेश्चन ये है. Some parents think that childcare centers provide the best services for children of preschool age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their kids. काफी पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो बेहतरीन जगह है जहां पे आप बच्चों को प्री स्कूल में रख सकते हो, जहां पे उनको बेस्ट सर्विसेज मिलेगी.
अदर वर्किंग पेरेंट्स, काफी और पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि फैमिली मेंबर्स को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रखना चाहिए क्योंकि वो बच्चों की ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे. Discuss both views and give your opinion. I hope the essay is clear everybody. Is the essay clear everybody? First of all, I'm going to go very slow. पहले essay पता चला आपको? Have you understood the essay everybody? There are certain, yes, very good. Please be responsive faster so that मुझे पता चले कि आपको पता चला है कि नहीं. ठीक है. सो काफी लोग ऐसा मानते हैं, काफी पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों को भेजा जाए. काफी पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि दे शुड बी सेंट टू, they should be taken care of by grandparents. Discuss both views and give your opinion. Now I am going to write a proper paragraph. मैं 2 सैंपल बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे कि दोनों सैंपल में से बेहतरीन सैंपल कौन सा है. ये हम इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉपर पैराग्राफ. Many parents in full-time employment prefer to leave their children with grandparents when they are at work because they feel that their child will be safer with someone from within the family circle. In other words, they do not trust a stranger to look after their child and feel confident. Just a minute. Okay. And feel confident that no harm will come to the child whilst being looked upon by grandma or grandpa. For example, a 2013 study from Cambridge University showed that 62% of working mothers prefer a member of the immediate family to provide care when they are at work. Now, let me explain you once again. Students, ये थोड़ा थोड़ा धीरे जाते हैं. Many parents in full-time employment. I am giving 2 samples of writing a proper paragraph. आपको मुझे बताना पड़ेगा दोनों में से कौन सा सैंपल सही है. I am reading it once again. Many parents in full-time employment prefer to leave their children with grandparents when they are at work because वो ऐसा मानते हैं, they feel that child will be safer with someone from within the family circle. क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि चाइल्ड बच्चा सेफ रहेगा, महफूज रहेगा अगर फैमिली सर्कल में से ही किसी के पास अगर उसको रखा जाता है. इन अदर वर्ड्स, वापस उसको एक्सप्लेन किया, दे डू नॉट ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर, क्योंकि उनको स्ट्रेंजर पे भरोसा नहीं है कि और उनको कॉन्फिडेंट है कि उन पे कोई भी हार्म नहीं होगा अगर ग्रैंडमा या ग्रैंडपा उनकी देखभाल करते हैं. एंड देन दे हैव गिवन, एक्सप्लेन किया है उन्होंने एग्जांपल से. फॉर एग्जांपल, a 2030 study from Cambridge University showed that 62% of working mothers prefer a member of the immediate family to provide care when they are at work. उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 62% लोग वर्किंग मदर्स ऐसा मानते हैं कि अपने बच्चों को इमीडिएट फैमिली मेंबर के साथ रखेंगे तो बेहतर रहेगा. नाउ आई एम गिविंग द सैंपल नंबर 2. Grandparents are the best people to look after children for very obvious reasons. ठीक है, grandparents are the best people to look after children for very obvious reasons. Grandparents really love their grandchildren and would never harm them. ठीक है, would never harm them. Also, the children really love their grandparents and feel comfortable with them. बच्चों को भी grandparents के साथ बड़ा मजा आता है, comfortable रहते हैं. Finally, grandparents have lots of experience taking care of children. तीसरा कारण यह है कि ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अनुभव होता है बच्चों की देखभाल के लिए बिकॉज दे आर ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़े होते हैं और उन्होंने भी एंड लुक्ड आफ्टर चिल्ड्रन फॉर मेनी इयर्स देमसेल्फ, उन्होंने खुद ने भी अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो जाहिर है उनके पास अनुभव ज्यादा होता है. क्लियर? नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हिच इज अ बेटर पैराग्राफ, सैंपल 1 और सैंपल 2? प्लीज लेट मी नो. आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हिच पैराग्राफ इज बेटर, सैंपल 1 और सैंपल 2, एंड एक्सप्लेन मी व्हाई. आपको मुझे समझाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू नो व्हिच इज अ बेटर पैराग्राफ. एवरीबॉडी, आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी. व्हिच पैराग्राफ इज बेटर, सैंपल 1 और सैंपल 2? एक्सप्लेन. व्हाई सैंपल 1 इज बेटर? सैंपल 2 में तो काफी रीजंस हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस इन सैंपल 2. देन व्हाई अकॉर्डिंग टू यू सैंपल 1 इज बेटर? सैंपल 1 क्यों बेटर है? क्योंकि अगर आपको ये समझना है कि सैंपल 1 क्यों बेटर है, क्यों, तो आपको ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखना पड़ेगा. वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन अहमदाबाद विल एक्सप्लेन यू कि ऐसे सही तरीके से कैसे लिखा जाए. क्यों? क्योंकि बैंड डिस्क्रिप्टर्स में लिखा है कि आपका आइडिया सिर्फ जरूर नहीं है, बहुत सारे आइडियाज की जरूरत नहीं है. एक आइडिया होगा, उसको आपको रीजन करना है एंड उसको एग्जाम्पल से उसको एग्जाम्पलीफाई करना है. जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया
कि many parents in full time employment prefer to live, उसके बाद in other words उसको extended idea दिया in other words करके, उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इन सेंटेंस नंबर 3। सैंपल 2 में आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर एक सेंटेंस नया आइडिया लेके आता है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर वेरी ऑब्वियस चॉइस, ये रीजंस। अब रीजन चालू किया उन्होंने, पहला कारण, फिर ये दूसरा कारण, ऑल्सो दूसरा कारण, और तीसरा कारण। दैट मीन्स ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज, दिस आइडियाज आर नॉट प्रॉपरली एक्सटेंडेड एंड दे आर नॉट सपोर्टेड बाय प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि whenever you write an essay, don't think of getting ideas out of the moon. बहुत बेहतरीन आइडियाज लाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा आइडिया होगा, उस आइडिया को दूसरी लाइन में एक्सटेंड कीजिए एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल उसको एग्जाम्पलीफाई कीजिए। इज हाउ यू नीड टू राइट अ प्रॉपर पैराग्राफ। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? यस और नो? इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीबडी। छोटी सी चीज पहले ये समझना जरूरी है। सी सबसे बड़ी बात क्या होती है, यू पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, यू नो, काफी लोग इंजीनियर्स होते हैं। सी ये समझना बहुत जरूरी है, काफी लोग इंजीनियर्स होते हैं। देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम पीएचडी करे हुए बच्चे भी आईएलटीएस करते, तो ऐसा सोचते सर इतना छोटा सा आइडिया है उसमें क्या क्या मैंने कोई नई चीज दी है, ऐसा नहीं करना है। लुक, IELTS कैन ऑल्सो बी गिवन बाय 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, IELTS can also be given by a 12th standard student, and IELTS can also be given by a college graduate and a PhD student. That means richness जाहिर है PhD जिसने किया होगा या तो फिर ज्यादा कोई अनुभव होगा उसका आइडिया बेहतर होगा, और जो बेचारा 12वीं कक्षा का पास विद्यार्थी है उसके आइडिया उतने अच्छे नहीं होंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर 12वीं में पढ़ता हुआ बच्चा है, उसने ये चीज को फॉलो किया, अगर उसने बैंड डिस्क्रिप्टर्स को ठीक से समझा है कि मुझे आइडिया देना है, सिर्फ देना नहीं है, उसको एक समझाना भी है और एग्जाम्पलीफाई भी करना है, तो उसको बैंड ज्यादा मिलने की संभावना है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन, भले ही उसका आइडिया अच्छा हो बट ही हैज नॉट सपोर्टेड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्लियर? सो कैन यू टेल मी विच वन इज बेटर? मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। सैंपल 1 हैज वन मेन आर्ग्यूमेंट, पेरेंट्स प्रीफर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज दे ट्रस्ट देम। They have stated this very clearly in the first sentence and then explained why this is in the second sentence. पहले सेंटेंस में एक आइडिया लिखा जो सैंपल 1 था उसमें, सेकंड सेंटेंस में उस आइडिया को एक्सपांड किया, and they have also used a very specific example to support their idea. This is exactly what the examiner wants. Is it getting clear? This is exactly what the examiner wants. Sample 2 has many different arguments and most of them are very general. They have not been extended with explanations and lack examples. This is exactly what the examiner does not want. तो अगर आप जितना अच्छी तरह से इसको समझ पाए उतने अच्छे बैंड्स आपको मिलने की संभावना है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 3 सेंटेंसेस जो है पैराग्राफ के उसको कैसे लिखा जाए। तो नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड पैराग्राफ इनटू 3 to 4 सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस होगा उसको हम कहेंगे टॉपिक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस होगा उसको बोलेंगे सपोर्टिंग आइडियाज, एंड फाइनली जो तीसरा सेंटेंस या चौथा सेंटेंस होगा उसको आप एग्जाम्पल कह सकते हो। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ इन एनी IELTS ऐसे, आप उस पैराग्राफ को 3 या 4 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दीजिए। द फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस, दूसरा या तीसरा सेंटेंस दोनों सपोर्टिंग आइडियाज हो सकते हैं, एक आइडिया भी हो सकता है, मतलब एक सेंटेंस भी हो सकता है, 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, एंड फाइनली इफ पॉसिबल try to give a proper example. The very first sentence in your supporting paragraph should be the topic sentence. Each paragraph should have one main idea only, and the topic sentence tells the reader what this idea is. तो हर एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होना जरूरी है। अगर आपने पैराग्राफ में 2 आइडिया किए तो गलत हो जाएगा। जैसे कि एक IELTS का ऐसे का टॉपिक आता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, बट मोस्ट ऑफन देन नॉट यू आर ओनली गोइंग टू गिव वन आइडिया पर पैराग्राफ. दिस मेक्स योर पैराग्राफ एंड द होल essay clearer and easy to read. You will gain marks for coherence in the IELTS writing test if you do this. Think of them as a signpost that directs the reader to where you want to go. We think of topic sentence as in an argument,
ऐसे बाय थिंकिंग ऑफ आइडियाज व्हाई वी सपोर्ट वन साइड और द अदर। तो अभी ये सब कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है, सीधा सिंपल सी बात है, पैराग्राफ को 3 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंस में डिवाइड कर लीजिए। एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल। मोस्ट हाई लेवल पोजीशंस इन कंपनीज आर फिल्ड बाय men even though the workforce in many developed countries is more than 50% female. Companies should be required to allocate a certain percentage of these positions to women. Do you agree or disagree? ऐसा कोई ऐसे है, मैं उसको हिंदी में समझाना चाहूँगा। काफ़ी हाई लेवल पोजीशंस जो होती है जॉब जो कंपनी में, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेट कंपनी है, उसमें जो सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, वो ज़्यादातर जो जगह होती है वो आदमियों से मतलब कि मैन से भरी पड़ी रहती है, जबकि देखा गया है कि उस ही कंपनी में 50-50% मेल्स और फीमेल्स काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो कंपनी शुड बी ऐसा है कि कंपनी शुड बी रिक्वायर्ड टू एलोकेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस पोजीशन टू वुमन। तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि ऊपर की जो पोजीशन है उसमें भी परसेंटेज कोटा होना चाहिए कि इसमें इतनी परसेंटेज वुमन होगी, इतनी परसेंटेज मैन होगी। आपका क्या कहना है? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? टॉपिक ये कहता है भले ही 50-50% मेल और फीमेल किसी कंपनी में काम करते हैं, देखा ये गया है कि इन द टॉप मोस्ट पोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम द प्लेसेस आर फिल्ड बाय मेन। आपको क्या लगता है, क्या कोटा सिस्टम होना चाहिए? ऐसा लिखा नहीं है कोटा सिस्टम, बट कहने का तात्पर्य ये निकलता है कि देयर शुड बी ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस पोजीशन टू वुमन। डू यू एग्री और डिसएग्री? तो पहले क्या करना है, वी आर गोइंग टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अगर इस चीज को मैं एग्री करता हूं तो क्या फायदे, फॉर के लिए क्या फायदे है, अगर इस चीज को डिसएग्री करता हूं तो क्या फायदे। जैसे कि अगर, सो वी हैव टू थिंक ऑफ रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट एलोकेटिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोजीशन इन द वर्कफोर्स टू वुमन। तो पहले ये करते हैं, अगर ये चीज होती है, जैसे कि अगर ये कोटा सिस्टम आता है तो उससे क्या फायदा होगा। तो मैं ब्रेनस्टॉर्म करके ये देख रहा हूं, तो इससे फेयरनेस होगा, मतलब इक्वालिटी होगी, जो दूसरे पॉइंट में दिया है। फेयरनेस मतलब वुमन को ऐसा लगेगा कि यस आई एम बीइंग ट्रीटेड फेयरली। दूसरा इक्वालिटी होगी समाज में, उससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। और वुमन आउट परफॉर्म मैन इन मैनी जॉब्स, काफी जॉब्स ऐसे देखे गए हैं जिसमें वुमन मैन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और दूसरी, वुमन आउट परफॉर्म मैन इन मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स। ऐसा देखा गया है पढ़ाने का जो होता है उसमें काफी जगह पे, सब जगह नहीं काफी जगह पे, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में वुमन मैन से अच्छा पढ़ाती है, आउट परफॉर्म करती है। तो मैं अगर इस चीज से सहमत हूं तो मैंने देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते 5 रीजंस निकाल दिए। फेयरनेस, इक्वालिटी, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, काफी जॉब्स में वुमन आउट परफॉर्म करती है, और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में तो ये प्रूव हुआ है कि वुमन आउट परफॉर्म मैन को करती है। अगर मैं अगेंस्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी सोचता हूं, फॉर एग्जांपल कि शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट नॉट जेंडर। कोई भी जगह मेरिट पे होनी चाहिए, जेंडर के बेस पे नहीं होनी चाहिए। अगर वुमन बेहतर है तो उसको देनी चाहिए, लेकिन अगर बेहतर नहीं है तो उसको मैन को देनी चाहिए। ये अगेंस्ट की बात है। और काफी ऐसे जॉब्स है जैसे कि फ्यू जॉब्स लाइक कंस्ट्रक्शन आर बेटर सूटेड टू मेल्स। कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह है जहाँ पे जो थोड़ा सा हैजार्डस रहता है, रिस्की रहता है, ऊपर जाना होता है, गिरना पॉसिबल होता है, तो बेहतर यह है कि ऐसी जगह पे मेल्स को ही डाला जाए। अब ये सोचना है कि हमारे पास पॉइंट्स कहाँ ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू कैन सी दैट मेरे पास फॉर में काफी अच्छे पॉइंट्स है, फेयरनेस, इक्वालिटी, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, वुमन आउट परफॉर्म मैन इन मैनी जॉब्स, और वो 5वां पॉइंट। तो ऐसे केस में मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई सपोर्ट द फॉर कैटेगरी। फॉर कैटेगरी का मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि वुमन के लिए कोटा सिस्टम होना चाहिए। सी आई एम नॉट यूटिलाइज, सी कोटा सिस्टम का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये कोटा सिस्टम इंडिया से आया हुआ है, तो कोटा सिस्टम का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कोटा सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, I support the for category, so I'm going to pick 2 of those reasons and write topic sentences for them. You should always pick the ideas you know most about, or in other words you can explain and support with examples. अब देखिए कितने पॉइंट्स है मेरे पास, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर फॉर 1 2 3 4 और 5। तो मैं उसमें से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उस 2 पॉइंट पे आई एम गोइंग टू राइट 2 पैराग्राफ्स। ऊपर इंट्रोडक्शन और नीचे कंक्लूजन तो होगा, बट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करूंगा उसका पहला टॉपिक सेंटेंस जो होगा वो मेरे पैराग्राफ का भी पहला सेंटेंस होगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू राइट 2 पैराग्राफ्स। 2 पॉइंट लूंगा, तो मैंने टॉपिक सेंटेंस 1 लिया, women should be allocated a certain percentage of roles because to not do so discriminates against them because of their gender.
इज इट गेटिंग क्लियर? तो मैंने कौन सा लिया, एक पॉइंट लिया प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन. आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू. मैंने इनमें से एक लिया प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, तो उसका मैंने टॉपिक सेंटेंस बनाया, वुमन शुड बी एलोकेटेड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रोल्स बिकॉज टू नॉट डू सो डिस्क्रिमिनेट, उनके सामने डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो ये मेरा पहला टॉपिक सेंटेंस बना. दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ. अब उसी की तरह टॉपिक सेंटेंस 2, females should be given a better share of jobs because women currently outperform males in most university subjects. मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, तो आप मुझे बता पाएंगे विच पॉइंट आई हैव सिलेक्टेड. 1 2 3 4 और 5 में मैंने कौन से दो पॉइंट सिलेक्ट किए? कैन यू हेल्प मी आउट स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, कैन यू हेल्प मी आउट विच 2 पॉइंट्स आई हैव सिलेक्टेड? एक तो मैंने लिया था थर्ड, prevent discrimination, yes or no, and I have taken the fifth one, so I have taken third and the fifth one. Is it getting clear everybody? Very good. Okay, अब ये, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, what I am going to do is, तो मैंने दूसरे देखिए टॉपिक सेंटेंस पे ही पता चल जाता है that I have selected the fifth point, females should be given a bigger share of jobs because women currently outperform males in most university subjects. This is going to be the first sentence of my body paragraphs. I hope it is clear. As you can see, all I have done is simply introduce my ideas in a very clear way. There is no need to use very advanced to do this. Stating your position in simple language is all you need to do. Now, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि where I should be utilizing simple, compound and complex sentence. Don't try to utilize too many complex and compound sentences in the first sentence of your paragraph, because अगर ऐसा complex sentence लिख दिया जिससे आपका idea clear नहीं होता, then you are going to lose marks on cohesion and coherence. आपको ये भी पता चलना चाहिए where you should be utilizing compound and complex sentences. That means when you are writing paragraphs, the first sentence of that paragraph should be clear. If you want to write a complex sentence, it is fine, but the idea should be very clear. जैसे कि मैं ये टॉपिक सेंटेंस में देख के पता चल जाता है, पहला जो टॉपिक सेंटेंस है इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा टॉपिक सेंटेंस है उसमें ऐसा लिखा है मैंने कि वुमन करंटली आउट परफॉर्म मेल्स इन मोस्ट यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स. सो आई हैव क्रिएटेड फर्स्ट टॉपिक सेंटेंसेस फॉर बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई आइडिया. दूसरे सेंटेंस में दोनों चीजों को मुझे एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनिंग आइडियाज, अब ये ध्यान से सुनिए. आई वॉन्ट एवरीबडी टू लिसन टू दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. Explaining ideas is a problem for most students, not because they can't do it, but because they don't see the point in doing it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी लोग ऐसे बच्चे ऐसा मानते हैं, सर इसमें समझाने वाली क्या बात है, ये तो खुद ही समझ जाएंगे सर, एग्जामिनर तो काफी पढ़े लिखे होते हैं. यही गलती आप कर रहे हो. आपको ये समझना है, जिनको मैं समझा रहा हूँ एक छोटा सा बच्चा है, he is not knowing anything about any topic, और उसको समझा रहा हूँ तो कैसे समझाऊंगा. अगर ये आपके दिमाग में घुस गया तो आप अच्छा ऐसे लिख पाओगे. जैसे आपने ये सोचना चालू किया कि सर ये तो बहुत ये तो बहुत इजी है, इसमें समझाने की क्या जरूरत है, तो आपकी दुर्गति होना चालू हो जाएगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर इवन इफ द आइडिया इज वेरी सिंपल, explain it properly in the second sentence. They think that the examiner must be an educated person and explaining simple ideas to them is wasting their time. You should never assume this, and instead I tell my students to assume that the reader has no knowledge of this subject at all, and you need to explain what you mean in order for them to understand. तो आप दूसरा जो सेंटेंस चालू है होगा आपका पैराग्राफ में, उसमें कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये सेंटेंस वर्ड्स ऐसे हैं जो आप सेकंड सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे पैराग्राफ के, जैसे कि दैट इज टू से, इन अदर वर्ड्स, दिस इज बिकॉज, द रीजन इज, एज ए रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर. सो आप देख के पता चल जाता है कि आई एम नॉट मेकिंग अ न्यू आइडिया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द ओल्डर आइडिया. इज इट क्लियर एवरीबडी? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? यस और नो? Yes, tell me, have you understood or not, students? तभी मजा आएगा. Yes, everybody, I want answers from everybody. Have you understood what I mean to say? काफी मेहनत लगती है समझाने में. Very good. Okay, fine. Clear? So पहला आपको क्या करना पड़ेगा? Yes, तो पहला क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा सेंटेंस लिखा. It may be a compound sentence, it may be a simple sentence, but it should be clear. The second sentence आप स्टार्ट करेंगे ये सब लिंकिंग वर्ड्स से. Okay.
use one of these phrases to explain what your topic sentence means, the reason why or the result. मतलब ये याद रखना है। सर वो कैसे करना है? तो आपने क्या करना है, जो पहला सेंटेंस आपने लिखा उसको आप प्रश्न कीजिए why। क्या प्रश्न करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू क्वेश्चन? व्हाई। व्हाई, तो व्हाई का जो आंसर जो मिलेगा वो आपको सेकंड सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि मेक श्योर दैट एनीवन विद नो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर मेन पॉइंट इज। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। पहला सेंटेंस तो था ही, वुमन शुड बी एलोकेटेड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रोल्स बिकॉज टू नॉट डू सो डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट देम बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। ये शायद आपको याद होगा, वो आपका टॉपिक सेंटेंस जो हमने पहले से लिखा हुआ है। Now see, I am writing the second sentence. As a result, ये कौन से phrases का इस्तेमाल किया है? देखिए, ये I have utilized this, इसमें से कोई एक phrase का मैंने इस्तेमाल किया है। See, I utilized any one of these phrases in the second sentence. As a result, ये हुआ आपका, just a minute, एक मिनट, let me explain। हाँ, तो देखिए ये रहा आपका connective word. As a result, women will be denied jobs not because of their intellect or skill, but simply because of their जेंडर या तो फिर सेक्स। इसलिए कि ऐसा करने से उनके सामने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वो कभी भी बिकॉज नॉट ऑफ देयर इंटेलेक्ट और स्किल, बट बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे हम, अगर हम लोग ऐसा कोटा सिस्टम नहीं करेंगे, तो उनको हो सकता है कि सिर्फ वो औरत है उसलिए उनको मना कर दिया जा सकता है कि भाई आपको टॉप लेवल की पोजीशन नहीं मिलेगी। तो मैंने जो पॉइंट किया पहले में हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द सेकंड सेंटेंस। उसी तरह ये दूसरे पैराग्राफ जो है उसका, females should be given a bigger share of jobs because women currently outperform males in most university subjects। ये दूसरा सेंटेंस, दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस, सॉरी पहला सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये रहा लिंकिंग वर्ड। दिस इज टू से those young women are just as qualified as men if not more and should therefore be given at least an equal share in the job market। मतलब कि मैं ये समझा रहा हूँ कि वुमन जो यूनिवर्सिटी में काम करती है वो उतनी ही क्वालिफाइड होती है, इफ नॉट मोर, ज्यादा नहीं तो कम से कम मेल्स जितनी तो क्वालिफाइड होती है, और उनको जाहिर है इक्वल शेयर ही मिलना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड सेंटेंस दैट आई एम पुटिंग, wherein I am giving the extended idea of what I put in the first sentence। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको एग्जांपल से नवाजा जाए। तो लास्ट पॉइंट आई विल मेक अबाउट एक्सप्लेनेशन इज that should relate specifically to the question। They should not generally explain what the idea is, they should explain how the idea answers the question। Make sure you read the question again before you write a topic sentence or explanation। तो जब आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हो तो बार बार एक बार चीज को याद रखिए कि वेदर दिस टॉपिक सेंटेंस एंड द सपोर्टिंग आइडियाज, क्या मेरे ऐसे के जो टॉपिक है, जो ऐसे का जो टाइटल है उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब उसको मैं जो समझता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो एग्री करता हूँ, वेदर इट इज सपोर्टिंग दैट और नॉट। तो बार बार उसको चेक करना जरूरी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ऐसा बोलते हैं मुझे, सर मुझे एग्जाम्पल्स क्लिक नहीं होते, आई एम नॉट एबल टू गेट प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे ऐसा रीडिंग, आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड आई एम नॉट एबल टू गेट प्रॉपर एग्जाम्पल। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी हो कि एग्जाम्पल को कैसे लिखा जाए। द लास्ट पार्ट ऑफ ए गुड सपोर्टिंग पैराग्राफ इज अ रेलिवेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स गिव योर पॉइंट्स मोर ऑथोरिटी, आपके पॉइंट्स को ज्यादा ऑथोरिटी देंगे, एंड मेक योर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर। आप किसी को ऐसा ही बोलते हो लेकिन एग्जाम्पल से आप समझाओगे, इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। The two main problems here are not being able to think of examples and examples not being specific enough। तो यहाँ पे दो गलती होती है। एक तो ये कि आप सोचते नहीं हो, सोच नहीं पाते कि सर मैं कौन सा एग्जाम्पल लिखूं, और दूसरा आपका एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं होता। मैं आपको दोनों चीज सिखाऊंगा। नंबर वन, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आता तो क्या करना है, और नंबर टू, एग्जाम्पल को स्पेसिफिक कैसे बनाना है। इन द IELTS टेस्ट, इफ यू कांट थिंक ऑफ अ गुड एग्जाम्पल, मेक वन अप। इसका मतलब समझाएंगे? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट डज दिस मीन? यस, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी दिस? व्हाट डज दिस मीन? यस स्टूडेंट्स, if you can't think of a good example, make one up। इसका मतलब कौन समझाएगा? Can anybody explain me this? Yes, we have to cook up the example, write by yourself, make it by yourself, you can make your own word। one word तो अपना ही है, create your own। very good। तो सबका आंसर यही है
कि इफ यू डोंट थिंक ऑफ एग्जाम्पल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी, क्रिएट अ वन। सर क्रिएट करेंगे, अरे भैया वो इंग्लिश की टेस्ट आपकी है, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एमबीए। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इट इज important for you to understand that even if you could not make an example, don't worry, you can cook up your own example. In the IELTS test, if you can't think of a good example, make one up. In school or university, you should research and use real examples, but in the test like IELTS, it is fine to make them up. It is not a test of your knowledge, it is a test of your written English. The examiners will never check the examples, and they are only worried about how the examples support your ideas. Example, वो आपने अगर example लिखा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ऐसा सर्वे हुआ था, तो they are not going to research on Google to check out whether it is right or wrong. तो आप कुक कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे आते हो तो उसका इस्तेमाल न करें। दिस आइडिया शुड ओनली बी यूटिलाइज्ड if you're not able to think of an example. Clear everybody? चलिए आगे बढ़ते हैं। The two good ways to make up examples are using newspaper articles or university research. अब देखिए एक चीज याद रखिए, यूएसए, कनाडा, यूके, ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटीज, उनकी ऐसे 3-4 कंट्रीज की 3-4 यूनिवर्सिटीज के नाम रेक्टिफाई कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो फॉर हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज, दिस आर वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज, बट सेकंड लेवल की यूनिवर्सिटीज जो है, मैं समझाऊं आपको। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइक पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किले, या तो फिर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह वगैरह, नंबर 1। और 2-3 अच्छे न्यूज़पेपर का नाम याद कर लीजिए, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स वगैरह वगैरह वगैरह। और 3-4 यू कैन ऑल्सो गो फॉर फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स के भी न्यूयॉर्क टाइम्स मैंने बताया वैसे। और 2 ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बचाएगी एग्जाम में, एक है WHO हु, और दूसरी है यूनेस्को या तो फिर यूनिसेफ। अगर कोई हेल्थ का टॉपिक आता है तो WHO हु का एग्जाम्पल बेझिझक दे सकते हो आप। आई रिपीट, कौन सी 3 चीज का इस्तेमाल याद रखेंगे आप? यू नीड टू रिमेंबर 3 यूनिवर्सिटीज, नॉट सो वेरी पॉपुलर, नॉट सो वेरी लेस पॉपुलर, एवरेज लेवल की यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिए। नंबर 1, 3-4 यूनिवर्सिटी, एक यूके की, एक ऑस्ट्रेलिया की, एक यूएसए की, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 न्यूज़पेपर्स का नाम याद रखिए। एंड नंबर 3, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रखिए, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज आपको वहां पे काम लगेगी। तो देखिए एग्जामिनर कैसे करते हैं। द एग्जामिनर वांट्स योर एग्जांपल्स टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। टू इलस्ट्रेट दिस, विल लुक एट 3 एग्जांपल्स। वी विल लुक एट 3 एग्जांपल्स। अब आपको मुझे बताना है कि मैं एग्जांपल तो दे रहा हूँ, आई एम कुकिंग द एग्जांपल, बट एग्जांपल को कुक करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1, आपको मुझे बताना पड़ेगा ये तीनों 3 एग्जांपल में अच्छा कौन सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, lots of women fail to get jobs solely on the basis of their gender. Example number 2. For example, many businesswomen in Asia find it difficult to get jobs as CEOs despite having the same qualifications as men. ये दूसरा example. Example number 3. For example, in 2014, it was reported in the Straits Times. It was reported in the Straits Times that only 9 of Singapore's top 100 companies have female CEOs despite making up 50% of the total workforce. क्या आप मुझे बताएंगे इन तीन एग्जाम्पल में 1, 2 और 3 में कौन सा एग्जाम्पल अच्छा है? Can you tell me which example is better? And can you tell me why it is better? Why it is better? Can you tell me why this example is better? ये इसलिए बेटर है, इट इज बिकॉज ये इसलिए बेटर है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी जनरल एंड नॉट अ सेटिस्फैक्टरी एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुक भी करना है, एग्जाम्पल बनाना भी है, इफ यू इवन वांट टू मेक एन एग्जाम्पल, बट आपको ठीक से बनाना पड़ेगा। तो कैसे करना है? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी जनरल एंड नॉट अ सेटिस्फैक्टरी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 इज मच बेटर, बट अगेन बिजनेस वुमन इन एशिया इज ए वेरी जनरल, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा है, चाइना भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, सिंगापुर भी आ जाता है। तो आप, when I talk about Asia, it's not a small country like a small country like for example नाटोस। ये बहुत बड़ा खंड है। तो इसमें आप ऐसा बोलोगे बिजनेस वुमन इन एशिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट।
and does not really support our argument because of this. Example 3, very important, read कीजिए इसको ठीक से, is a very good example because it used an actual newspaper to report specific statistics from a specific place at a specific time. Is it clear or not? Is it clear? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, बहुत जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल का ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज राइट प्रॉपर, टेक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आपको पता चलेगा कि एग्जांपल को कैसे दिया जाए। तो आप जब भी व्हेनेवर यू वांट टू गिव एन एग्जांपल इन IELTS, तो आपको पता चलेगा कि एग्जांपल को कैसे दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? लेट मी नो व्हेन यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। टेक दिस, ये आपको पता चलेगा कैसे करना है इसको। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? वेरी नाइस, ठीक है। So putting it all together, below I will put everything we have learned to write 2 supporting paragraphs in this sentences. बस इतना ही मुझे सिखाना था। Is it getting clear? So I repeat, ये देखिए, तो आपके पैराग्राफ में क्या होगा, द फर्स्ट सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस हो जाएगा, ये दूसरा सेंटेंस, और बाद में ये सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स। So this is how you are going to write the entire paragraph. तो पहला टॉपिक सेंटेंस के बाद you need to understand, एक मिनट, ये वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। दिस आर द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द सेकंड सेंटेंस। एंड फाइनली एग्जाम्पल को स्टार्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई वर्ड्स करके ये चीज को आप लिख सकते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टू यू, इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस, नाउ लेट मी टेल यू, देयर इज आल्सो गोइंग टू बी लेक्चर एट 8:30 एज वेल। शाम को 8:30 बजे भी लेक्चर है, तो उसको भी आपको भरना है। ये तो मैंने इसलिए लिया कि आई वांटेड टू शेयर दिस विद द न्यू स्टूडेंट्स। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कल एग्जाम है आपकी? अच्छा, ओके, ठीक है, क्लियर, फाइन। ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू शुड बी यूटिलाइजिंग इन योर एसे इज गोइंग टू बी 250 मिनिमम वर्ड्स है जुगल, बट यू मे राइट 260, 270, 280 वर्ड्स आप लिख सकते हो। That's fine. You can write 260, 270. 250 is the minimum number of words you should write. Don't go for exactly 250. You can write 260, 270 words. Yeah, 280 words is also fine. But don't go beyond 300 words. Please don't go beyond 300 words. Very, very best of luck, Arpita, for exams. I hope this session, example cook up करना अच्छी तरह से। याद रहेगा ना आपको कि 3 चीजें याद रखनी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम। आपको ये भी याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल से फॉर इंस्टेंस अच्छे WHO का नाम याद है। WHO तो इतना पॉपुलर है, आप हेल्थ का कोई भी टॉपिक ले लो, हेल्थ का कोई भी टॉपिक आए, WHO को डाल दो, ये हर दूसरे तीसरे दिन they give they do research, so you can always take WHO, ये आपकी नैया पार करा देगा। ठीक है? Okay, best of luck to everybody. Thank you so much students, thank you so much. We'll meet once again on Monday. मैं मंडे को वापस लेक्चर लूंगा, तो we'll be meeting once again. और आज शाम का जो 8:30 बजे का लेक्चर है, उसको भी आप कृपया प्लीज अटेंड दैट। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।